एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। There are two types of classification of quantitative data and classification of qualitative data. Let us understand by considering them of the following examples. अब यहाँ पे हम examples देख लेते हैं कि दो टाइप की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा का भी और क्वालिटेटिव डेटा का भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं कि 100 families is selected from the region and information regarding the number of children per family is obtained. 100 observations regarding the number of children per family are collected and this data are called ungrouped or raw data. Now on the basis of study, it is concluded that there are 10 families having no children, 35 families have 1 children, 40 families having 2 children and 15 families having 3 children. This is called a quantitative classification and consciously it can be represented as under. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि 100 फैमिलीज़ जो है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ में कितने चिल्ड्रन हैं उसके बारे में। तो अब यहाँ पे 100 फैमिलीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो हमारे लिए क्या हुआ, रो डेटा हुआ। अब उस रो डेटा के ऊपर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 10 फैमिलीज़ ऐसे कि जिसके नो चिल्ड्रन है, 35 फैमिलीज़ ऐसे कि जिनकी 1 चिल्ड्रन है, 40 फैमिलीज़ ऐसे कि जिनके 2 चिल्ड्रन है एंड 15 फैमिलीज़ ऐसी कि जिनकी 3 चिल्ड्रन है। अब उसको हम यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जो आपको टेबल दिया उसके तरीके से। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1, 0, 1, 2 एंड 3। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 0 चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी थी, 10, 1 चिल्ड्रन दैट फैमिली विल बी 35, 2 चिल्ड्रन दैट द फैमिली विल बी 40 एंड 3 चिल्ड्रन दैट द फैमिली विल बी 50. In the above example, number of children per family is numerical variable, then it is called a numerical classification or frequency distribution. यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लिए जो number of children है हमें numerical बताएगा, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, numerical classification और frequency distribution. In the above example, instead of number of children per family, if there are information regarding core occupation of family, it is collected on the basis of this and it is concluded that the core occupation of 30 families is farming, core occupation of 25 families is business, core occupation of 25 is service and core occupation of remaining 20 families is labor. Then it is also called a classification and represented as under. अब यहाँ पे आपको को ऑक्यूपेशन दिया कि यहाँ पे कोर ऑक्यूपेशन मतलब कि जो मेन उनका ऑक्यूपेशन क्या है फैमिलीज़ का, 100 फैमिलीज़ का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया, तो फार्मिंग, बिजनेस, सर्विस एंड लेबर। 30 फैमिलीज़ ऐसे कि जिनका ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, 25 फैमिलीज़ ऐसे जिनका ऑक्यूपेशन बिजनेस है, 25 फैमिलीज़ ऐसे जिनका ऑक्यूपेशन सर्विस है एंड 20 फैमिलीज़ ऐसे कि जिनका ऑक्यूपेशन लेबर है। In the above example, core occupation of family is qualitative variable, so it is called a classification of qualitative or tabulation of data. यहाँ पे ये जो हमने डेटा किया वो हमारे लिए क्या हुआ, क्वालिटेटिव वेरिएबल हुआ, तो वो हमारे लिए एक टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा और टेबुलेशन ऑफ डेटा हुआ। Thus the row or ungrouped data are mainly classified as classification of qualitative data and classification of quantitative data. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल. Classification of discrete variable is called discrete frequency distribution. Classification of continuous variable is called the continuous frequency distribution. यहाँ पे हम quantitative variable को अगर हम classified करने जाए तो यहाँ पे दो टाइप से discrete variables and continuous variable. अब जो हम discrete variable को अगर हम classified करते that is called the discrete frequency distribution and continuous frequency को अगर हम continuous variable को अगर हम classified करते तो वो हमारे लिए क्या हो गया, continuous frequency distribution. अब उसमें से सबसे पहले आज हम देखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द न्यूमेरिक वैल्यूज शोइंग द रिपीटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे नंबरिक वैल्यूज जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटेड नंबर्स जो हमें बताए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बताए, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. A table showing up possible values of discrete frequency and their representative frequency and their respective frequency is called discrete frequency distribution. कि हम जो टेबल के थ्रू हमें पता चले कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल के ऊपर से हम यहाँ पे समझते हैं. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे
information regarding the number of accident per day on a particular road of a city is as under। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए गए ड्यूरिंग द डे ऑफ मंथ। अब यहाँ पे 0, 1, 3, 2, 0, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए कि मई महीने में रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द डे, वो आपको दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे आर गिवन अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड वी आर प्रिपेयरिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अंडर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ हमारे पास वो रो डेटा था, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज़ 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5। अब जब भी आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब कि डिस्क्रीट वेरिएबल को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अरेंज करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। आपको इस टेबल में मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, कितनी है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई है 5। Therefore, the possible values of variable x are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. We are given ungrouped data in sequence by put a tally mark against the value of variable we read। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रो डेटा को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेली मार्क करेंगे। मतलब कि ये जो इस तरह का जो हम एक लाइन बोलते हैं वो हम ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमने जो डेटा रीड कर लिया उसके लिए हम उसे टेली मार्क करेंगे। इफ़ 4 टेली मार्क इज पुट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड देन द 5th टेली मार्क इज पुट क्रॉस टू हैव अ ग्रुप टू हैव 5 टेली मार्क्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 टेली मार्क्स इस तरह से लिखेंगे और अगर कोई डेटा जो वो 5th बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस 4 टेली मार्क्स के ऊपर इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे। द पर्पज ऑफ डूइंग दिस मार्क आर काउंटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन। द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी नंबर ऑफ values of the variable. For example, illustration n is equal to sigma f is equal to 31, then the frequency distribution thus obtained as अंडर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम इस तरह से टेली मार्क्स कर देंगे और उस टेली मार्क्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे और जो हमारा टोटल आएगा वो हमारे लिए क्या हुआ, एन हुआ। मतलब कि जो हमारे एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमने इस तरह सीखा, तो उसको हम एग्जाम्पल में हम किस तरह से करें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 0 दिया हुआ था, 0 के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। फिर अगेन जो है फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के पास लाके लाइन कर देंगे। फिर आएगा 1, तो 1 के पास लाइन आएगी। 0 है तो अगेन 0 के पास में जो हमने लाइन की उसके पास में दूसरी लाइन कर देंगे। फिर 3 है तो 3 के पास दूसरी लाइन, 2 तो 2 के पास यहाँ पे आके हम लाइन करेंगे। फिर अगेन 2 है तो 2 के पास जो हमने लाइन की उसके पास में फिर से लाइन कर देंगे। इस तरह से सारे जो लास्ट में टोटल आएंगे, जो सारे डेटास को हम इस तरह से टेली मार्क करके रिप्रेजेंट करेंगे और इस रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमने टेली मार्क किया उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कि सपोज़ यहाँ पे 0 है, 0 का टेली मार्क हम काउंट करने जाए तो यहाँ पे जैसे आपको भी बताया कि 4 टेली मार्क्स हो गए और 0 अगेन 5th टाइम रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो 4 टेली मार्क है उसके पास ऊपर से हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया, 4 टेली मार्क्स के और 5 जो है 0 जो है 5th टाइम रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस। तो ये 5, 6, 7, 8 एंड 9 मतलब कि 0 एक्सीडेंट्स कितने हुए 9 डेज़ के अंदर, ऐसे कि जहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मतलब कि 5 हुए और प्लस 2 तो कितने हुए 7। फिर अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें 2 है तो 2 पे भी हम कितने टोटल आएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। फिर 3 एक्सीडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 एक्सीडेंट्स में कितने हैं, 1, 2 एंड 5 एक्सीडेंट्स में आएगा 1 एंड 2 और लास्ट में इन सब का टोटल। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ रो डेटा इज कॉल्ड रेंज। कि हम जो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स, मतलब कि ये जो 5 हमारे लिए मैक्सिमम नंबर हुआ और 0 हमारे लिए मिनिमम नंबर हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए क्या है, रेंज। तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेंज। सो आज के इस वीडियो में हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो हो, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे। थैंक यू।